At the outset, let me congratulate the organizers, Mrs. Ahuja, Mr. Ahuja, and their team for organizing this exhibition, which has perhaps given an avenue to artists to display their talent. As you're aware, Colaba, which is my assembly constituency, is considered to be the hub of arts, whether it is performing arts, whether it is fine arts. We've got the JJ School of Arts in this constituency, we've got the Jahangir Art Gallery in this constituency, we've got NCPA in this constituency, we have the Bajaj Art Gallery in this constituency. So it is on my priority list to ensure that Colaba Assembly constituency becomes the art capital of Mumbai city. And therefore, when Mr. Arora told me about there being an exhibition being organized at the Bajaj Art Center, I did not hesitate to accept the invitation, because this is another step in progressing and achieving this motive of becoming the art capital of Mumbai. I once again congratulate all the organizers and truly appreciate the beautiful talent displayed by artists in this exhibition. I am sure that number of Mumbaikars will take advantage of this opportunity to view the talent displayed by the artists here, which will in effect increase the promotion of talent, of art in this city. I look forward to many such more endeavorances by Mrs. Arora and her team, and be rest assured that art will always be promoted in the city of Mumbai, in the state of Maharashtra. As the Speaker of Maharashtra Legislative Assembly, whenever you need any assistance in this behalf, you can please feel free to call upon me, and it shall be a privilege to help you in this behalf. Thank you once again for having me here, and my best wishes to all the artists who have participated in this exhibition. Thank you once again. हेलो हाय नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों मैं पंकज बेरी। दोस्तों आज द ग्रेट इंडियन आर्ट शो की ओपनिंग होने जा रही है शाम को 4:30 बजे, जिसमें मैं शामिल होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं आ पा रहा हूं, क्योंकि मुझे दोपहर में ही बॉम्बे से बाहर शूटिंग के लिए जाना पड़ रहा है। लेकिन मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं इस शो के लिए और इस शो के ऑर्गेनाइजर्स के लिए, जो कि मेरे मित्र भी हैं, नरेंद्र अरोड़ा, अंजलि अरोड़ा जी और हीरल जी। आप सभी को इस शो की कामयाबी के लिए दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू, सी यू सून, बाय बाय। This is a brochure, the Great Indian Art Show. You all have to visit, and I'm damn sure that you all are going to love it. The way it is put up, thodi finishing work baki hai, but it's going to be very nice. We are here from 10th to 14th, so please zarur visit kariye. Yes sir. मैम आपने जो है वो नेता को भी बुलाया, अभिनेता को भी बुलाया, मतलब कैसे रोल लेते हैं सर? एक्चुअली ना हम सब लोग आर्टिस्ट हैं। कोई परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है, जैसे मैं बोलने का आर्ट है मेरे अंदर, तो वैसे ही इनको बिजनेस का आर्ट है। तो ये सबकी ज़रूरत है। हम सब लोग मिलके जब एक आर्ट को आगे बढ़ाएंगे ना,
दैट विल बी गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल। हर आर्टिस्ट बोलता है मेरे आर्ट की वैल्यू नहीं है, लोग खरीदते नहीं हैं। देखिए, लोग खरीदे नहीं खरीदे, मगर उन तक आपका टैलेंट पहुंचना बहुत ज़रूरी है, जो काम हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब टैलेंट, जब बोलते हैं ना, जब पहली नज़र में प्यार हो जाएगा तो वो प्यार घर पे भी जाएगा ही। Once again, gentlemen, sir, take minute, please. All the guests, यहाँ हम लोग अराउंड 23 आर्टिस्ट हैं साथ में, 24 और 25 हमें गिन लीजिए, क्योंकि हमें भी अपना जो प्रमोशन का आर्ट है वो करना है। इसलिए हमने आज फिल्म इंडस्ट्री से भी लोगों को बुलाया, कॉरपोरेट से भी बुलाया, पॉलिटिशियन भी आए। तो वहाँ तक हमारा ये जो वर्क है, ये जो हमारी एग्जीबिशन है ऑलरेडी पहुँच चुकी है। तो आई एम श्योर इन 4 दिनों में कुछ चमत्कार होने के चांसेस जरूर हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, मैम के साथ आपने किसी के साथ जब अटैच होते हैं तो एक चीज कॉमन होती है जिसको विजन बोलते हैं, राइट। और सबसे बड़ा विजन जो हम लोग साथ में लेके चल रहे हैं वो जो हिंदुस्तान का आर्ट है उसको आगे जाके प्रमोट करना, हिंदुस्तान के जो आर्टिस्ट है उनको प्रमोट करना, सबसे बड़ा विजन ये है हमारा। सो इस तरफ से जब विजन जुड़ता है तो साथ में काम भी जुड़ जाता है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, मैम के हर सारे प्रोग्राम में आप आते हैं, ऐसा क्या है? ऐसा क्या है मैम? मुझे इनके इन दोनों से प्यार है और इनके काम से प्यार, इनके पति के साथ इनका चक्कर है। क्योंकि बेसिकली क्या है ना कि जो काम ये कर रहे हैं ना, उसमें मैं आज बताऊं अपनी शूटिंग छोड़ के आया। हाँ, एक्चुअली मैं शूटिंग छोड़कर आया एक्चुअली, और ये सिर्फ इस वजह से क्योंकि एक तो इनसे तो प्यार है ही है, लेकिन जो ये काम कर रहे हैं ना उससे प्यार के अलावा मैं इनकी बहुत रिगार्ड करता हूँ उसके लिए। क्योंकि ये चीज़ करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत ऑर्गेनाइजेशनल स्किल चाहिए, और उसके अलावा एक पैशन चाहिए जो इनके अंदर दिख रहा है। और ये कहाँ लेके जाएंगे मैं आज देख रहा हूँ, दे विल टच द हाइट्स, स्काई हाइट तक जाने वाले हैं ये दोनों 100%। थैंक यू सो मच। मैं जब भी कुछ बोलना रखता हूँ, एक तो मेरा नंबर आता है देर से और बोल ये सारे जाते हैं, तो मेरे लिए कुछ बोलना बाकी नहीं है। ये इन्होंने सब बोल दिया, यही मेरे वर्ड्स है। थैंक यू सर। थैंक यू। देखिए, मैं ज़्यादा एक्चुअली बोल नहीं सकता, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट। पहली बात तो ये कि जैसे कि पुरी साहब ने कहा कि ये जो कर रहे हैं उसके लिए बहुत करेज चाहिए, हिम्मत चाहिए, और ये आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं। हम लोग सब आर्ट से जुड़े हुए हैं, सिर्फ हमारा मीडिया अलग है, हम एक्टर हैं, और ये बना के इन्होंने जो क्रिएट कर रहे हैं उनका भी पैशन है एक्चुअली। हाँ, मैं सीख रहा हूँ बड़े होके। मैंने कहा ना, शायद मैं एक्चुअली बनूँ और पेंटर भी, बट आई फील बड़ा मैं अभी नहीं हूँ, अभी थोड़ा और टाइम है, सीख रहा हूँ अभी। फिर बड़े तो तब हो गए जब अभी बड़े हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? लेट्स सी, 100-200 साल में शायद कहीं बड़ा होने का ही नहीं है, सीखते रहने का है। बड़े बन गए तो सीखना बंद हो जाता है। मैं तो बहुत छोटा हूँ, बट एनीवे वो अलग बात है। बट मेन पॉइंट ये है कि जब तक हम स्टूडेंट हैं, नहीं हर चीज में स्टूडेंट बन के सीखते रहेंगे ना। तो मैं ये फील करता हूँ कि जो नरेंद्र जी कर रहे हैं, नंजल जी कर रहे हैं, ये एक बहुत हमारे लिए बहुत जब भी मुझे इनका फोन आता है मुझे लगता है येस आई वांट टू बी पार्ट ऑफ इट, बिकॉज ये हर आदमी करने का, यहाँ पे एक तो बम्बई शहर है, यहाँ पे सब कमर्शियल लोग हैं, सिर्फ पैसा ये वो सोचते हैं। ये वो चीज़ कर रहे हैं जो ऑफ बीट है, जो अब आप पेंटिंग को प्रमोट कर रहे हैं। क्योंकि मैं भी छोटा मोटा सा आर्टिस्ट हूँ, जैसे उन्होंने जैसे बोला, मुझे ये फील होता है कि एक पेंटिंग बनाने के लिए, जैसे सर ने भी कहा, एक कैनवस में सिर्फ ब्रश और कलर के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है जो एक इंसान के अंदर से निकलती है। उसको आप एक अच्छा पैकेज बना के बेचे, उसका कोई मोल नहीं होता है, आर्ट का कोई मोल नहीं है, बट उसको आप प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहाँ पे लोग आके उसको देखेंगे, सराहेंगे, और जिनके पास वो हिम्मत होगी वो खरीदेंगे और अपने घर में सजाएंगे, और वो हमेशा के लिए रहेगा, इमॉर्टल, वो अमर हो जाएगा एक पेंटर, एक आर्टिस्ट उससे। सो अगर इनका इसमें इतना योगदान हो रहा है तो मैं आके यहाँ पे मुझे आई फील
मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ आया हूँ. इट्स माई प्लेजर, इट्स एन ऑनर फॉर मी. सर लास्ट में सवाल, आज आपने यहाँ पे क्या क्या सीखा? बहुत कुछ. अभी तो सीख रहा हूँ आपसे. सबसे पहले तो ये सीखा कि जब आप कैमरे में हो और सामने से रिफ्लेक्टर एक इधर से आ रहा हो और एक किसी के सर से आ रहा हो, तो उसको कैसे बचने का है. तो मैं इस वक्त आपसे सीख रहा. बट एनीवे बहुत कुछ सीखा. वो मैं शाम को जाके इकट्ठा करूंगा तो मालूम पड़ेगा. एज एन आर्टिस्ट, एज अ पेंटर, एज अ पर्सन, एज एवरीथिंग आई फील सब लोग टीचर है हमारे. आप भी हैं. थैंक यू सो मच. आपने भी सिखाया. सर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात आपने बताई. हाँ. दिलों वाले कुछ और हो जाए और तो क्या, रिलेशन रंगों का, रिलेशन रंगों का आर्टिस्ट से होता है. और रंगों का रिलेशन हो के घर में, अपने घर में रख के कुछ फायदा नहीं. वो दूसरा पेंटिंग करने के लिए, तैयार होने के लिए क्या चाहिए, दूसरा कैनवास खरीदने के लिए क्या चाहिए, वो अंजलि और नरेंद्र ने देखा है, चाहा है कि इनको ये मिले. और मेरी शुभकामना है कि वो ऑक्शन हाउस तक जाएं और ऑक्शन हाउस से कम 50 करोड़ का एक पेंटिंग बिक पाए. वेरी गुड. थैंक यू. सर आज आपने यहाँ पे पेंटिंग देखी, क्या लगा पेंटिंग में? कुछ खास लगा आपको? मुझे स्मार्ट सिटी में ये इतनी हो जाएगी? देखिए, मैं अलग तरह से आंसर देता हूँ. पेंटिंग्स तो अच्छे ही है और जो काम हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है. ऑर्गेनाइज़र ने काफ़ी अच्छा ये इवेंट रखा है. मुझे लगता है हिंदुस्तान में ऐसी टैलेंट को बाहर लाना बहुत ज़रूरी है. ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो रहा है, काफ़ी कहीं टैलेंट है जो कहीं बाहर नहीं आ सकती है. तो ये क्षेत्र मुझे लगता है थोड़े समय में 2-5 साल में ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा. अभी आप जो देख रहे हैं वो एक झलक है, और मुझे लगता है ये काफ़ी आगे बढ़ने वाला है. और हमारी जो टैलेंट, जैसे मैं आईटी इंडस्ट्री में हूँ, हमको एक बार मौका मिला था Y2K के लिए, तो पूरी इंडस्ट्री वहाँ से बनी है. ईयर 2000 के बाद में दुनिया के ऑब्जर्वेशन में आ गई है. तो मैं चाहता हूँ कि आर्ट को भी बहुत ज़रूरी है मोटिवेट करने का, आर्टिस्ट को मोटिवेट करने का, इस टाइप का फंक्शन को. तो मुझे लगता है कि दुनिया की नज़र में भी हम लोग काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे. मैम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैम के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? See, कोई भी अच्छा काम करने के लिए एक पैशन चाहिए. जो मैं देख रहा हूँ उसमें पैशन, और जो मैं सोच रहा हूँ कि आगे जाके ये भी इतनी प्रशंसा होगी जितनी आईटी की हो रही है, और उसके पीछे कई लोगों का हाथ है. ऐसे मैडम जैसे लोग और हीरो जैसे लोग यहाँ बैठे हैं, वो काफ़ी टैलेंट को आगे लाएंगे. और हम खाली हिंदुस्तान में नहीं, हमारी जो टैलेंट है पूरा दुनिया में देखी जाएगी. आज नितिन सर जैसे लोग, विकास सर जैसे लोग, नितिन सर जैसे लोग जब हमको टाइम देते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात होती है हमारे लिए, राइट? क्योंकि इनका समय मिलना मुश्किल होता है, और इनका समय, इतना समय मिलना तो और भी मुश्किल होता है. पर जब ये समय निकाल के हमारे पास आते हैं, तो ज़रूर ये भी आर्ट को अप्रिशिएट करते हैं, और ज़रूर ये भी चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, और ये जो वर्ल्ड है, पूरी जो सोसाइटी है आर्ट से रिलेटेड, आगे बढ़े सोसाइटी.